Similarly, question number 10 is based on the Young's modulus formula. You can try this 10th question. We'll discuss question number 2. Question number 2 is also based on the Young's modulus. And okay, इसमें second part में थोड़ा सा देखना पड़े. Anyway, let me see. Okay. Just a minute. Okay, we'll do this question. This is very good question. Before that, ये जो question कल मैंने homework में दिया था आपको, could you get that question? The Young's modulus का question है, or you want hint in this? देखिए. Can you explain this one once? Yes. देखो, what they are asking, let us read it and understand what is the key point here. देखिए, 2 wires diameter is given. One is of steel, other is brass. यहाँ पे लिखा भी है. And diameter is same for both. Radius is same for both. Shown in the diagram. The unloaded length, मतलब initial length, L1 and L2 are given. L1 is this, for this, यहाँ भी लिखा भी, they are written here also. Initial lengths are given. Unloaded length means L1 and L2. Compute the elongations delta L1 and delta L2 आपको निकालना है. तो formula used will be this only. Y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और delta L को इधर शिफ्ट कर दिया. तो do we know all these parameters? F is known. Okay, L is given direct. Young's modulus you have to see in the table. आपका वो table में लिखना पड़ेगा steel का and brass का. So Young's modulus you can use the table. Area of cross section also given. Radius is given. Diameter is given. So pi r square will be the area of cross section. So this is given. This can be done from the table. Forces are indirectly given. What will be the force on this wire? Can you tell me on the steel wire how much force we have to write? बोलिए. या फिर इस पे बताइए पहले ब्रास वायर पे कितना फोर्स होगा? How much the brass wire will experience the force? F कितना होगा इसके ऊपर बोलिए? Sir, 6 newtons. 6G. Yes. Because brass wire is supporting F on the force on the brass wire will be 6 into G. Because mass, it is supporting mass 6 kg only. What about the steel wire? How much the force on the steel wire? Sir, 10G. How much? Sir, 10G. Yes, because the steel wire has to support both the masses. Yes, sir. दोनों masses का load on this steel wire will be there. So it will have the load of 4 kg also and 6 kg also. So total 10G. G की value ratio G की value 9.8 या 10 ले सकते हैं. They are not mentioned anything. Now you can go ahead with this. अगर स्टील वायर का आपको निकलना है चेंज इन लेंथ तो उसका फोर्स आपको 10G लिखना पड़ेगा. G की वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हैं. उसकी लेंथ दी हुई है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेशन में भी लेंदी, बट यू शुड नो की पॉइंट. की पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाली वायर है इट हैज टू सपोर्ट बोथ द लोड्स. उसके ऊपर दोनों वेट का लोड आएगा कि नहीं? क्लियर है नॉट? क्योंकि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो ये दोनों मास एक साथ, इसका तो वेट है ही नहीं, तो ऐसा हो जाएगा. ऊपर वाली वायर के लिए, स्टील वायर के लिए ये 4 kg और नीचे वाला 6 kg. इट हैज टू सपोर्ट बोथ द वेट. तो उसके ऊपर 10G का लोड आएगा और ये नीचे वाली वायर है इसके ऊपर 6G का लोड आएगा. So that is the key point here. Other points are easy. Other is only calculation. All right.
Yes, sir. Okay. So this can be important question. उससे भी ज्यादा important ये वाला question है. Let us see who can tell me the correct method to solve. This is important for competitive examination. I am telling you. JEE and NEET के लिए important question है. So let's understand this question. Rod of length 1.05, this one, having negligible mass, is supported at its ends by two wires, this one and this one. Wire A is made of the steel and aluminum, and this one is aluminum wire, which is wire B of equal lengths. L1 and L2 both are equal. The cross-sectional area of wire A and B are 1 and 2 millimeter square. Double है इसका. This is aluminum is double of that of wire A in terms of cross-sectional area. At what point along the rod should a mass M be suspended? ये यहाँ पर be suspended in order to produce equal stresses. इसमें और इसमें stress equal हो जाए. Means stress in the wire A should be equal to stress in wire B. तो कितने ये distance Sir, you are not audible.
Yogesh sir. Sir is not audible. Okay. So since how much time? Sir, I think it's been 3 minutes. Okay. Okay, just a minute, I will call him. आपने से किसी ने इन्फॉर्म किया सर को? Sorry, sir. Anyone had informed? किसी ने फोन किया था सर को? No, sir, not. Okay. Sir is doing. Recording in progress. देखिए दिस क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग, तो इसमें क्या है, फर्स्ट केस में क्या दिया, इक्वल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस इन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस इन बी, यहां तक हो गया था? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके आगे करना है हमें, तो लेट्स सी। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, F1 अपॉन A1, सेकेंड वायर के लिए F2 अपॉन A2 लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट। फोर्स, ये वायर में फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम टेंशन भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट टेंशन आल्सो। तो F1 upon A1 is equal to F2 upon A2. F1 and F2 are the forces in the wire A and wire B. तो F1 by F2 क्या हो जाएगा, A1 by A2। A1 कितना दिया, 1, यहाँ पे देख रहे हैं, कैन यू सी इट, A1 and A2 1 and 2 दिया है, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट व्हेन वी डिवाइड विल गेट कैंसल। तो F1 by F2 इज 1 by 2, ये हमें इक्वेशन मिल गई फोर्स का। इनके जो वायर्स में फोर्स है उनका रेशियो 1:2 है, बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस x। तो बस इसको पॉइंट P लिखा, इसको Q लिखा, तो और इसको O लिखा, तो वी नीड द PO, ये दिस डिस्टेंस चाहिए PO, दैट इज x। तो हाउ टू गेट दिस वैल्यू, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट इक्वेशन, कैन समबडी टेल व्हाट शुड बी द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज a key point here, हाउ टू गेट द x, उसके लिए दूसरी कौन सी इक्वेशन बनाए, can somebody think and tell? Some equation related to center of mass. Center of mass, no. Any other idea? Sir, second. Second equation, which should be the second equation, so that we can get the value of x. Of course, this we'll need it in that second equation. We can use this, but from where second equation will come? देखो, this rod is weightless rod, massless है, but it is in equilibrium. Equilibrium में क्या होगा, net upward force will be net downward force left, net rightward force will be net leftward force. तो forces balance है, तो
that can be one equation, but that will not help us in getting the x. It is also in rotational equilibrium. ये जो फोर्स है ये वाला, इसको इधर टर्निंग की टेंडेंसी है, और ये वाला फोर्स इसको ऐसे टर्न करने की टेंडेंसी है, बट दिस इज नॉट टर्निंग, इट मींस इट इज नेट टॉर्क इज जीरो. तो टॉर्क की इक्वेशन में डिस्टेंस भी आता है. टॉर्क की इक्वेशन आर क्रॉस एफ होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ इज द टॉर्क. तो टॉर्क इज नेट टॉर्क इज जीरो ऑन द रॉड सिंस इट इज नॉट रोटेटिंग. ठीक है, तो टॉर्क हम कहां से ले सकते हैं? वी कैन टेक फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम ओ, फ्रॉम क्यू, एनीवेयर वी कैन टेक. बट इफ वी टेक द टॉर्क फ्रॉम ओ, तो इसका जो वेट है, इसका जो वेट होगा mg, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा. m इज नॉट नोन आल्सो, है ना, तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा. तो we'll be left with the force F1 and F2. We know the ratio, so our job will be done. So we are taking the torque from O. If you take the torque from P, again you have to make one more equation. Vertical forces को balance कराना पड़ेगा. So better you take the torque from O. You don't need the equation. Next equation, taking torque from point O, जहां पे मास हमने सस्पेंड किया हुआ है ना, ओ से टॉर्क यहां से लेंगे. पहले इसका ले लो, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं. तो आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस इनटू एफ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1.05 है. ये हमने एक्स मानी है, तो रिमेनिंग दिस विल बी 1.05 माइनस एक्स. तो ऐसे लिखेंगे, टॉर्क अबाउट ओ विल बी टॉर्क ऑफ द वायर 2 माइनस, इसको वायर 1 ले रहे हैं, इसको वायर 2 ले रहे हैं. टॉर्क ऑन द वायर, टॉर्क इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका प्लस ले लिया हमने, और ये क्लॉकवाइज टर्निंग की टेंडेंसी है फोर्स 1 को, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे. एक दोनों अपोजिट है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं. तो टॉर्क 2 कितना होगा? टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी आ जाएगी? 1.05 माइनस एक्स, और फोर्स F2 आ जाएगा, माइनस इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, और फोर्स F1 है. Since rod is in equilibrium, therefore torque will be zero. Torque on it about any point will be zero. ठीक है, किसी भी पॉइंट से लेंगे जीरो आएगा, तो हमने ओ से लिया, तो ये जीरो कर दो. लेफ्ट साइड में जीरो हो गया. अभी यहां से देखो, जीरो इज इक्वल टू 1.05 माइनस एक्स इंटू F2 माइनस एक्स इंटू F1. साइड चेंज कर लो. अभी एक्स F1 इधर आ जाएगा, और ये 1.05 माइनस एक्स F2 एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो F1 अपॉन F2 कर लो. F1 अपॉन F2 इज नोन, या फिर यहां से देखो, F1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, F2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं. F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1, तो यहाँ पे पुट कर दो. F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1. F1 कैंसिल हो जाएगा. एक्स F1 1.05 माइनस एक्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ F1, तो F1 कैंसिल हो गया. तो ये x है 1.05, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2.10 माइनस 2x, 2x इधर आ जाएगा, 3x हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2.1/3, तो 0.7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. x is equal to 0.7, therefore 0.7 meter from left end of the rod. क्लियर? तो देखो, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछो. ये दिस इज योर कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही होगा.
उसमें दूसरी कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन से अप्रोच करना पड़ेगा। बोलिए, पहले क्या किया हमने, स्ट्रेसेस इन्होंने सेम दिए, देखो F1/F2 का रेशियो मिल गया स्ट्रेसेस सेम करने से, हमें एरिया क्रॉस सेक्शन दिया था उसकी वजह से F1/F2 मिल गया, या फिर हमें ये पता लग गया F2 इज 2 टाइम्स ऑफ F1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर हमने दूसरी इक्वेशन टॉर्क से बनाई, पॉइंट O से टॉर्क लिया, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और नेट टॉर्क 0 होगा, यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। टॉर्क का फार्मूला कौन सा यूज किया, R परपेंडिकुलर इनटू F वाला मेन फार्मूला, और इक्वेशन सॉल्व की तो हमें मिल गया व्हाट वी गॉट इज x की वैल्यू, मतलब वन एंड से लेफ्ट हैंड से कितनी दूरी पर मास हैंग करेंगे तो स्ट्रेसेस इक्वल हो जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो यू नोट डाउन इट एंड प्रैक्टिस इट वंस मोर विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, अपने आप ट्राई कीजिए, और बेटर यू ट्राई द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्ट्रेसेस स्ट्रेन सेम रहेंगी, तो ये वाला फार्मूला यूज कीजिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, इसको इक्वेट कर सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल है तो ये वाले टर्म भी इक्वल होंगे, तो यंग्स मॉडुलस का भी टर्म आ जाएगा इसमें। यंग्स मॉडुलस आपको देखने पड़ेंगे स्टील एंड एल्युमिनियम वायर की, फिर आगे तो ये वाली इक्वेशन तो सेम ऐसे बनानी पड़ेंगी, उस समय डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे x लिया, आप y ले लीजिए सेकंड केस में। उसका आंसर ये आएगा 0.43 मीटर फ्रॉम द स्टील वायर, ये 0.7 मीटर आया आपने, कैन यू सी द आंसर रिटन हियर? सेकंड का आंसर ये आएगा 0.43 मीटर फ्रॉम द, सेकंड कंडीशन अगर फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एग्जामिनेशन, जेईई एडवांस। Yes, sir. कुछ पूछना है आपको Yes, इसमें, sir. एनीथिंग यू वांट? यस, गो अहेड जल्दी से। And these kind of questions, what questions when it comes to I didn't get you, your sound was gone, come again. Sir, these questions, these questions. No, didn't get you again, you fix your mic first, ठीक है, बाद में पूछिए फिर। तो देखिए, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट होगा, एंड देन एनी अदर क्वेश्चन, ओके, दिस आल्सो वी कैन डू इट, वी हैव द 2-3 मिनट्स, ये आपको लैब में ये प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे आपको, इट विल बी डन इन द laboratory, you have to determine the Young's modulus of material of the wire। तो क्या करना है, यू विल टेक द सिमिलर 2 वायर्स, आप 2 वायर ले लीजिए आइडेंटिकल, ठीक है। इनिशियली उसमें पेन लगा के वेट रख दीजिए, दोनों में इक्वल वेट रख दीजिए, तो बोथ विल हैव द सेम इलॉन्गेशन, ठीक है। एंड उसके बाद ये यहाँ पे ये पॉइंटर का 0 रीडिंग सेट कर लीजिए, ठीक है। नाउ यू इंक्रीज द वेट ऑन दिस, इस पे आप एक और वेट रखिए, दिस विल कम डाउन, तो पॉइंटर विल कम डाउन, तो आपको डेल्टा एल मिल जाएगा, कितना नीचे है, द डेल्टा एल विल बी गेटिंग फर्स्ट रीडिंग, है ना। फिर सेकंड सम इंक्रीज सम मोर वेट, अगेन पॉइंटर विल कम डाउन फर्दर, तो डेल्टा L2 मिल जाएगा। ऐसे थे, यू डू एटलीस्ट 5 एक्सपेरिमेंट, कीप द 5 वेट्स, है ना। जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू टेक द रीडिंग, मोर एंड मोर रीडिंग यू विल टेक, लेस एंड लेस एरर विल कम इन दैट। कम से कम 5 रीडिंग लीजिए, इंक्रीज द वेट बाय 100 ग्राम, एंड कीप नोटिंग द व्हाट इज कॉल्ड चेंज इन द, इसका चेंज इन द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको, और जो वायर है उसका आपको रेडियस भी मेजर करना पड़ेगा बाय सम इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वायर का रेडियस मेजर करने के लिए? स्क्रू गेज विल बी देयर आपकी लैब में, वो आपको दिया जाएगा रेडियस मेजर करने के लिए वायर का। लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजरिंग के लिए आपको मीटर रॉड ले लेंगे, उससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और आप फिर वेट mg m1g लेंगे, पहले आपने सपोज 200 ग्राम रखा है ना,
नहीं 100 ग्राम बढ़ाया पहले आपने, तो M1 जी, तो Y1 मिल जाएगा आपको फर्स्ट रीडिंग से। लेंथ आपने मेजर कर लिया, रेडियस तो ये तो एक बार भी मेजर करना है, एक बार में आपका बस ये आपको M1 लिया तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 आ जाएगी, तो Y1 आ जाएगा। फिर सेकेंड रीडिंग के लिए M2 जी, है ना, लेंथ रिमेनिंग सेम, पाई आर स्क्वायर रिमेनिंग सेम, चेंज ऑफ लेंथ आपको फर्दर मिलेगा। तो ऐसे रीडिंग ले लेंगे 4-5, तो सबका एवरेज ले लेंगे, y एवरेज विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 अपॉन 5। जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। नाउ यू मे आस्क सर ये आपने 2 वायर क्यों ली, वाई वी टेक 2 वायर्स, है ना। 2 वायर्स इसलिए लेते हैं, दिस इज कॉल्ड you can see the diagram, this is called reference wire, this is called experimental wire, both wires will be identical। तो reference wire इसलिए लेते हैं कि suppose while experimenting temperature is increasing, है ना, you take say 1 hour, 1 hour में temperature बढ़ गया, तो इसका length भी temperature बढ़ने से length increases, expansion takes place, however it will be very small expansion, but you should be dead right, है ना, accurate result के लिए। अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी, दैट मींस सपोज इसकी लेंथ 0.01 मिलीमीटर बढ़ गई, इसकी भी बढ़ जाएगी 0.01 मिलीमीटर, तो योर एक्यूरेसी विल रिमेन। जो आपका चेंज ऑफ लेंथ है दैट विल नॉट बी अफेक्टेड इफ टेम्परेचर गोज अप इन while experiment, so that will neutralize the effect of increase of temperature if it happens in the lab, therefore ये 2 वायर्स ली जाती है आइडेंटिकल। इस पे लोड बढ़ाते जाते हैं हम धीरे धीरे, तो डेल्टा एल चेंज होता है। तो दैट एक्सपेरिमेंट विल बी डन यंग्स मॉडुलस कैरी डिटरमाइनिंग द यंग्स मॉडुलस इन द लैब, यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इन द लैब, ठीक है। तो दैट यू कैन डू while you do the experiment. All right, so any doubt in today's class you can ask, we have that few more minutes remaining, but this much from my side. तो आज हमने केवल यंग्स मॉडुलस पर ही फोकस किया है, अदर मॉडुलस विल सी टुमारो, सेम टाइमिंग। Sir, Tomorrow we'll have the class online only, but next week onwards, Friday we can have the offline class at same timing in that doubt session and some previous points if you have the doubt, but you have to give in 1 day advance कि डाउट सेशन में कौन कौन से पॉइंट्स आपको सीखने हैं previous chapters के। No new topic will be done in the doubt session, which will be every Friday on every Friday offline. No extra things will be done in that. Take 1 minute just